شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه. وعلى آله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المنتجبين المكرمين المظلومين الذين قال الله تبارك وتعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين. أما بعد فقد قال المعصوم عليه السلام: أعطينا العلم والحلم والفصاحة والسماحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللہ پروردگار محمد خدمت و صدقہ آپ مومنین مومنات کی اس کوشش کو عبادت شمار فرمائے اور پروردگار ہماری ان عبادتوں کو قبولیت کے درجے سے سرفراز فرمائے. عزاداران سید الشہداء جس انداز میں جہاں کہیں بھی صف عزا بچھائے ہوئے ہیں ذکر آل محمد پروردگار ان کے اپنی حفاظت فرمائے. ہم سب کو اس ذکر کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے. عزاداری و ذکر محمد و آل محمد ایک مقدس امانت ہے. پروردگار اس امانت کو سمجھنے اور اس کی حفاظت کی سعادت نصیب فرمائے. اس طرح ہمارے بزرگان نے بڑے خرچ کر کے یہ امانت ہمارے سپرد کی ہے. پروردگار اس امانت کو اپنے نسلوں میں منتقل کرنے کا شرف نصیب فرمائے. عزاداری کے وارث سے حقیقی صاحب العصر والزمان کے ظہور میں پروردگار تعجیل فرمائے اور امام کی خدمت میں اس پروسے کو پیش کرنے کا شرف و سعادت نصیب فرمائے. جن بزرگان نے والدین کی صورت میں، علماء کی صورت میں، خطباء کی صورت میں، ذاکرین کی صورت میں یہ مشن، یہ پیغام ہم تک پہنچایا ہے، اگر ہمارے درمیان ہے تو پروردگار ان کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے. اگر دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو پروردگار ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے، اس مرکز اور ادارے کی ترقی کے لیے ایک دفعہ سب مل کے سورہ مبارک فاتحہ کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ایام چونکہ مربوط ہیں مشن کربلا کے دو مفسر کہوں، دو معلم کہوں، دو محافظ کہوں، ان ہستیوں سے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور جناب امام زین العابدین علیہ السلام۔ حقیقت میں یہ ذکر محمد و آل محمد، یہ عزاداری، یہ ہمارے روحوں کی تسکین کا ذریعہ ہمیں ان ہستیوں سے میسر ہوا ہے۔ اب کس مشکل سے گزر کے انہوں نے اس مشن کو ہم تک پہنچایا، وہ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں اور ابھی بھی سنتے رہے۔ ان ایام میں سفر کے مہینے میں اکثر میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جناب سیدہ کے اور جناب امام سید سجاد کی خطبات سے اپنے جوانوں کو آگاہ کیا۔ بسم اللہ۔ اس لیے میں نے آج کی اس تقریر کے لیے، گفتگو کے لیے امام کے خطبے کے چند جملات آپ حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں۔ آل محمد کا ہر لفظ آل محمد کی عظمتوں کا ایک نشان ہے، اور ادبیات سے تعلق رکھنے والے افراد جانتے ہیں کہ اگر آپ کسی کا ایک جملہ سنیں گے تو آپ اس کی بہت ساری گہرائیوں کو سمجھ جائیں گے، بلکہ بعض جو ادب سے تعلق رکھتے ہیں اس کے پورے خاندان کا بھی پتہ کر لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ گفتگو اس لیے ان حصوں میں تصور ہوتی ہے جس کے ذریعے سے انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ اب کہنے والے کون ہیں؟ اس علی کے گھرانے سے تعلق ہے ان کا، کہ جو نہج البلاغہ میں فرماتا ہے اِنَّا لَأُمْرَاءُ الْكَلَامِ، اگر کلام کے امیروں کی تلاش ہے تو آؤ دیکھو میں علی کلاموں کا امیر کلاموں کا امیر، یہ نہج البلاغہ کے الفاظ ہیں۔ اب اس علی کے لیے اور ان کے کلام کے لیے ایک عربی شاعر نے بڑا خوب کہا، کہتے ہیں کلام علی کلام علی ما قالہ المرتضی مرتضی۔ مجھے پہلی ملاقات ہے آپ حضرات سے، لیکن الحمدللہ ایک چیز دنیا بھر میں جو سب میں مشترک ہے وہ یہ ہے کہ دل جس میں ولائے آل محمد سجی ہوئی ہو، وہ کسی سرزمین پہ، کسی ایج کے، کسی علاقے کے ہوں، ان کا کم از کم یہ رشتہ ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ اور میں ہمیشہ دعا یہی کرتا ہوں، میرا آپ کے ساتھ، میں کسی کو نہیں جانتا، سب کے ساتھ پہلی ملاقات ہے، شاید ایک آدھ ساتھی کو کسی مجلس میں دیکھا ہو، لیکن بڑے اطمینان سے آیا ہوں اور بڑے اطمینان سے بیٹھا ہوں، اس لیے کہ وہ رشتہ جو ہمارا ہے اس رشتے کا نام ہے محبت آل محمد۔ اس رشتے کو پروردگار قائم رکھے۔ لہذا دنیا، بڑی دنیا گھوما میں، اور 20-25 ممالک جو ہے ذکر حسین ابن علی کے صدقے میں جو ہے وہ، لیکن کبھی محسوس نہیں ہوتا کہ میں کہیں الگ ملک میں، الگ وطن میں جا رہا ہوں۔ اور ہم نے وہ بھی دیکھے ہیں کہ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، لیکن کوئی آل محمد سے دور چلا گیا تو وہ نیتوں میں بھی دور چلا گیا، رشتوں میں بھی دور چلا گیا۔ ہم نے وہ رشتے دور ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، اور دور کے رشتے آل محمد کی محبت و مودت کے صدمے میں قریب ہوتے ہیں۔ محمد و آل محمد بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا یقیناً
یہ ایک مدرسہ ہے، آل ابا کا یہ ذکر ایک مدرسہ ہے، اور یہی اس مدرسے کا کمال ہے کہ ہر علاقے کے لوگوں کو ایک ادب بھی سکھاتا ہے اور ایک ادبیات کی دروس بھی دلواتا ہے۔ لہذا میں کبھی کبھی یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمیں ہر مجلس میں اپنا امتحان مجلس کے بعد کرنا چاہیے کہ کیا میرے علم میں کچھ اضافہ ہوا ہے یا نہیں، اور بالخصوص محرم کے 10 دن گزر جائیں اس لیے کہ کلام ہو ان کا کہ جن کے لیے عرب شاعر کہتا ہے کلام علی کلام علی ما قالہ المرتضی مرتضی۔ یہ عجب انداز اپنایا ہے عرب شاعر نے، 2 دفعہ لفظ علی اس نے استعمال کیا ہے پہلے مصرے میں، کلام علی کلام علی۔ ماشاءاللہ۔ اب ایک دفعہ اس نے نام جناب امیر المومنین مراد لیا ہے، اور ایک دفعہ لفظ علی کا معنی مراد لیا ہے جو معنی ہے بلند تر، اور دوسرے مصرے میں بھی اس نے ایک لفظ 2 دفعہ استعمال کیا ہے مرتضی۔ ایک دفعہ جناب امیر علیہ السلام کا لقب مراد لیا ہے، اور دوسری دفعہ عربی لفظ کا معنی مراد لیا ہے جو معنی بنتا ہے پسندیدہ۔ اب شعر عربی کا پھر سنیے، شاعر کہتا ہے کلام علی کلام علی ما قالہ المرتضی مرتضی۔ علی کا کلام بلند تر کلام ہے، اس لیے کہ جو مرتضی نے کہا ہے وہ بہت ہی پسندیدہ ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد اب اس گھرانے کے ایک فرد ہے اور نام ان کا بھی علی ہے۔ ہاں جناب امام سید سجاد علیہ السلام کے خطبے کے الفاظ میں کبھی کبھی جناب امام سید سجاد کی عظمت بیان کرنا چاہوں تو سوچ میں پڑ جاتا ہوں، اس لیے کہ آل ابا کے لیے ہمارے ہاں 2 روایات یا 2 طریقے بیان کیے جاتے ہیں کہ ان کے گھر میں نام کیسے رکھے جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک نام رکھنے کا ذریعہ وہی ہے جس نے یحییٰ کا نام خود رکھ کے زکریا کو خبر دی میں بیٹا بھی دے رہا ہوں اور اس کا نام یحییٰ۔ ایک وہ ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی رواج یہ ہے، یا اگر یہ کہوں کہ تھا پتہ نہیں ابھی ہے یا نہیں، اور وہ یہ ہے کہ گھر میں بڑے نام رکھا کرتے ہیں۔ رواج اس لیے کہا کہ ہم چونکہ انگلینڈ میں آگے ہیں رواج بھی بدل گئے ہیں ہمارے۔ صلوات پڑھ لیجئے رواج نہیں بدلنے چاہیے، اس لیے کہ رواج ان کے بدلیں جو ہمیشہ جو چھوٹے چھوٹے ذہن ہوتے ہیں ان کے رواج بھی بدل جاتے ہیں، ان کے رسوم بھی بدل جاتے ہیں، ان کے ادبیات بھی بدل جاتے ہیں۔ اب جن کا تعلق عظیم گھرانوں سے ہو، اور اب علی کے گھرانے سے عظیم تو ہمیں کوئی گھرانہ ہی نظر نہیں آتا، لہذا جن کا تعلق اس گھرانے سے ہو وہ گھرانہ ماحول بدل کے، کوئی امریکہ ہو کوئی برطانیہ، مجھے بھی 22 سال ہو گئے ہیں اس ملک میں، تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ماحول کو دیکھ کے اپنے ادبیات کو نہ بدلیں اور اپنے رسومات کو اور اپنے اخلاقیات کو نہ بدلیں، بلکہ ہم اس پہ قائم رہیں جو آل محمد نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو یا تو اس گھر میں نام خدا رکھتا ہے یا بڑے رکھتے ہیں۔ ابھی چوتھے امام کی اگر عظمت کبھی سوچنی ہو تو بیٹھا کیجئے کہ جناب امام کی ایج 2.5 سال تھی جب امیر علیہ السلام کی شہادت واقع ہوتی ہے، یعنی 2.5 سال جناب امام چہارم نے اپنے جد امجد کے ساتھ گزارے۔ بسم اللہ۔ اب نام کیا ہے چوتھے امام کا؟ علی۔ اب یا تو اس علی نے رکھا علی نام، یا پھر اس علی نے علی نام رکھا۔ دونوں پہلو آپ لیں تو جناب سید سجاد کی عظمت عجیب نظر آتی ہے کہ یا وہ علی اعلیٰ نام رکھنے والا ہے، اب اس کو اتنا پسند ہے کہ ایک علی تو پہلے موجود ہے، ایک علی تو پہلے موجود ہے، دوسرا علی فرمایا اس لیے کہ اس گھر میں کوئی نہ کوئی علی ہونا چاہیے۔ اور اگر دوسرا معیار آپ رکھیں کہ بڑے گھر والے نام رکھتے ہیں تو اب بڑا اس گھر میں کون ہے؟ جناب امیر المومنین ہیں۔ اب علی کو لفظ علی اتنا پسند ہے کہ اپنی موجودگی میں اپنے پوتے کا نام علی رکھ دیا۔ لیکن میں جس جملے پہ سرور آتا ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ کیا منظر ہوگا جب 2.5 سال کا جن کے پوتے ہیں، اب وہ کتنا پیار ہوتا ہے، بعض اوقات یہ اولاد کے پھل سے
उस वालिदैन को अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार हो जाता है। अब हुसैन जनाब इमाम के घर बेटा है, नाम अली रखा है। अब वो क्या मंजर होगा जब अली के हाथों पे अली होगा। इसी को कहते हैं हम नूरुन अला नूर, यानी पहले इमाम के हाथों पे जब दूसरा अली बुलंद होगा तो हकीकी बुलंदी उसी को कहते हैं। मोहम्मद अब जनाब इमाम ने खुतबा बयान किया। दो खुतबे हैं शाम के। थोड़ा सा अपने इल्मी मकाम को बढ़ाने के लिए इन दो खुतबों पे तवज्जो करें। अजीब फसाहत और बलागत भी है, इल्म भी है, शुजाअत भी है, जुर्रत भी है, या यूं कहूं लहजे अली में पैगाम अली भी है। अब तो पहला खुतबा है जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का, और ये दरबारे यजीद का खुतबा है। चंद जुमलात इंशाअल्लाह फुर्सत हुई तो अर्ज करूंगा। और दूसरा खुतबा जिसके जुमलात मैंने आप हजरात के सामने पेश किए हैं, ये खुतबा जनाब सैयद सज्जाद का, ये चंद दिनों के बाद मस्जिद उमवी का खुतबा है। जनाब सैयदा का खुतबा ज़हन में रहे जवानों के खासकर। जनाब सैयदा का जो खुतबा है वो दरबार यजीद में है। जिस दिन काफिला दाखिले दरबार होता है उसी दिन का खुतबा है जनाब सैयदा का। मैं पिछली चंद मजालिस में फकत उन आयात पे बहस करता रहा जो बीबी ने उस खुतबे में बयान की हैं। 6 आयतें जनाब सैयदा ने उस खुतबे में बयान की हैं, और एक से बढ़ के एक आयत और मौक़ियत और तफसीर कुरान। और ये जो जनाब सैयद सज्जाद का खुतबा है ये चंद दिन बाद का खुतबा है, जब यजीद ने मस्जिद उमविया में बड़े बड़े मेहमानों को बुला के एक खतीब को कहा कि खतीब आप जो कुछ हमारी शान में बयान कर सकते हो बयान करो, और जो कुछ आले मोहम्मद की तौहीन में आप कह सकते हो कहो, आपको भरपूर इनाम दिया जाएगा। अब उसने जो कुछ कह सकता था वो कहा, और जनाब सैयद सज्जाद को नीचे बिठाया गया। अब सारी उसकी तकरीर जनाब सैयद सज्जाद सुन रहे हैं। जब जनाब सैयद सज्जाद ने ये खुतबा सुना और उस खतीब ने गुफ्तगू मुकम्मल की, तो अब जनाब इमाम फरमाते हैं अय्युहल यजीद एज़न ली, मुझे भी इजाजत दे, हत्ता असअद हाउलाइल अवाद व अतकल्लम बिकलिमातिन फीहिन्न लिल्लाहि रज़न व लिहाउलाइल जुलसाए अजरुन व सवाब। यजीद मुझे भी इजाजत देता है, मैं लकड़ियों के इस ढांचे पे बैठ के कोई ऐसी बातें करूं और कुछ ऐसे कलिमात सुनाऊं। अगर आपकी तवज्जो हो तो आपने शायद और नहीं फरमाया। अला हाउलाइल अवाद, इमाम फरमाते हैं मुझे इजाजत दे मैं लकड़ियों के इस ढांचे पे बैठूं। गोया जनाब इमाम ने फरमाया जहां आले मोहम्मद की तौहीन हो उसके जितने भी जीने बना लो, वो मिंबर नहीं हुआ करता, वो लकड़ियों का ढांचा हुआ करता। अला हाउलाइल अवाद। और फिर जनाब इमाम फरमाते हत्ता अतकल्लम बिकलिमातिन, मुझे इन लकड़ियों के ढांचे पे बैठ के वो कलिमात अदा करने की इजाजत दे दे फीहिन्न लिल्लाहि रिज़न, जिन कलिमात की अदायगी से रब राजी होता है और सुनने वालों को अजर सवाब मिलता है। रब राजी होता है। पता नहीं आप हजरात ने तवज्जो फरमाई या नहीं। मुझे कहने दे वो कलिमात कि जिन कलिमात से रब राजी होता है। अब ये खुतबा है, वक्त नहीं है कि मैं उस तरफ जाऊं। ये खुतबा है जिस खुतबे में 68 फजाइल जनाब अमीरुल मोमिनीन जनाब सैयद सज्जाद ने बयान किए हैं। यकीनन आपने खुतबा सुना होगा। हमारे ज़ाकिरीन बाद खुतबे में इस खुतबे के लफ्ज़ पढ़ते हैं और जनाब इमाम फरमाते हैं सुनो मैं उसका बेटा हूं। लम यरुद्द अलल्लाह तरफत ऐनिन ज़रब बिस्सैफैन तअन बिर्रुमहैन काता बदरिन व हुनैन लम यकफुर बिल्लाह तरफत ऐनिन। वो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के 68 फजाइल। अब जुमला फिर सुनिए, मुझे कुछ ऐसे कलिमात कहने दे जिन कलिमात से रब राजी होता है। वो या आले मोहम्मद के फजाइल वो कलिमात हैं जिनसे रब राजी होता है। पे बुलंद तर सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये चीजें जवानों के लिए समझने की हैं। माशाअल्लाह। 2 चीजें जनाब सैयद सज्जाद ने इस शाम के दरबार में अपनाई। पहली ये है कि जब किसी शामी ने पूछा कि आप कौन हो,
इमाम ने तारुफ कराया, 4 आयतें पढ़ी। मैं अक्सर अपनी मजालिस में कहता रहता हूँ, आले मोहम्मद का तारुफ अपने छोटे छोटे जहनों से हमें नहीं पेश करना चाहिए। आले मोहम्मद के तारुफ के लिए रब का कुरान मौजूद है। आले मोहम्मद का हकीकी तारुफ हो ही तब सकता है जब रब का कुरान पढ़ा जाए या आले मोहम्मद के फरामीन पढ़े जाए। हम अक्सर गलती कर जाते हैं इसलिए कि हम अपने एतबार से सोचते हैं वो कौन है। नहीं, रब से पूछिए जिसने इनको अजमत अता फरमाई है। और एक वाकया याद आ रहा है, जब इस यजीद का बाप मदीना आया तो इसने कहा कि आज के बाद कोई अली के फजाइल नहीं बयान कर सकता। और जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास इसको मिलने नहीं गए। जब ये मदीना से निकल रहा था तो रास्ते में कहीं जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास चंद अफराद के साथ तशरीफ फरमा थे। अपने घोड़े पे सवारी की हालत में वहां से जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास को मुखातब होकर कहते, अब्दुल्ला हमारा पैगाम सुना? क्या? हमने कहा कि आज के बाद कोई अली के फजाइल बयान नहीं कर सकता। भी बैठे बैठे मुस्करा के अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं, क्या कहा? फिर कहा मैंने कहा है कि आज से कोई अली के फजाइल इसके बाद नहीं बयान कर सकता। अब्दुल्ला मुस्करा के कहते हैं अब्दुल्ला इब्न अब्बास मुस्करा के कहते हैं, अल्लाह की किताब की तिलावत पर तो पाबंदी नहीं लगा सकता। 4 आयत इमाम ने पढ़ी है वहां। और पहली आयत जो सैयद सज्जाद ने दरबार शाम में पढ़ी है वो आयत है कि शख्स अय्युहा शेख अक़राअतल कुरान। उसने कहा हाँ। जनाब इमाम पूछते हैं क्या ये आयत पढ़ी है? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अब मैं अभी सुन रहा था, आप हजरात ने इस मजलिस से पहले हदीस किसा पढ़ी। हदीस किसा पे कभी आपने गौर किया? हदीस किसा क्या है? हदीस किसा इस आयत के शान नजूल का किस्सा है। आप देखिए हदीस किसा आयत तत्हीर का शान नजूल बयान कर रहा है। कहाँ ये घराना था, कैसे ये बैठे हैं और कैसे जिब्राइल आए हैं। और फिर इस जिक्र की अजमत का बयान है। इसको हम हदीस किसा कहते हैं। अभी हदीस किसा मुझे बयान नहीं करनी, मैं इतना कहता हूं कि जहन में रखा करो, हमारे जहन में जो आ जाए तो वो अजीम नहीं रहेंगे। इसलिए अपने जहन के मुताबिक आले अबा को मत सोचा करो। इसलिए कि हदीस किसा ही में मैं जब जनाब जिब्राइल को इस महफिल की तरफ आते हुए देखता हूं तो सबसे पहले पूछते हैं या रब्बे व मन तहतल किसा। ये बतलाइए हदीस किसा के नीचे हैं कौन? अब जिनका तारुफ जनाब जिब्राइल रब से पूछे उसको हम अली व औलाद अली कहते हैं। सलाम पढ़ लीजिए मोहम्मद अगर हदीस किसा की तरफ चली गई तो फिर ज्यादा फैल जाएगी। लिहाजा इस जिक्र की अहमियत को जानिए। इस जिक्र के लिए तारुफ पूछने वाले हैं जनाबे जिब्राइल, बतलाने वाला है अल्लाह। जनाब जिब्राइल, इसलिए तो इनका एहतराम करते हैं। मस्जिद नबवी में जनाब जिब्राइल वही लेके आए और जनाब पैगम्बर अकरम के साथ तशरीफ फरमा है। जनाब अमीर दाखिल होते हैं मस्जिद नबवी में और जनाब जिब्राइल इस्तकबाल के लिए खड़े होते हैं। पाक पैगम्बर फरमाते हैं, जिब्राइल इस आने वाले को जानते हो? हाँ या रसूलल्लाह, क्यों नहीं जानता? कब से? मैं अक्सर अपने अंदाज में पेश करता रहता हूँ, उस वक्त से जानता हूँ जब वक्त नहीं था। जब कब नहीं था तो उस वक्त से जानता हूँ। इसलिए कि कब तब बनता है जब सूरज हो, उसका गुरूब होना हो और उसका तुलू होना हो, तो तब वक्त बनता है। यानी जनाब जिब्राइल कहते हैं उस वक्त तो वक्त था नहीं कि मैं बतलाऊं। जनाब पैगम्बर अकरम पूछते हैं ये तारुफ कैसे हुआ था? रब ने मुझे खल्क किया और मुझे पैदा करने के बाद रब ने मुझसे पूछा, जिब्राइल मुझे बतला मैं कौन हूँ और तू कौन है। अब बात अगर बहुत ही बिखर रही है, कल संडे है, सफर तो मैं ज्यादा करके आया हूँ, लिहाजा बैठेंगे इंशाअल्लाह। सलावत पढ़िए मोहम्मद। मेरी मजलिसों में
ये भी कोई नहीं होता कि जिसको जाना हो अगर आप चला जाए तो कोई हरज उसमें नहीं। हाँ मोहतरम ने मुझे जब कहा तो पहले टाइमिंग कुछ और थी, तो मेरा जब रहने का यहाँ प्रोग्राम हुआ तो उन्होंने कहा हम थोड़ा आराम से जो है वो मजलिस रख लेंगे। मैंने कहा हम आराम से पढ़ेंगे। सलवात पढ़िए। तो ये तारुफ कब से हुआ? अब ज़हन में जुमला रहे कि इनका तारुफ या रब की किताब कराती है या अल्लाह का फरमान या इनके अपने फरामीन, या फिर कम अज कम जो है जनाब जिब्राइल से पूछ लीजिए। पैगंबर पूछते हैं जिब्राइल ये कब से तारुफ है? जब रब ने मुझे पैदा किया तो मुझसे सवाल किया कि जिब्राइल बतला मैं कौन हूँ, तो वो कौन है? मैंने कहा परवरदिगार मैं हूँ तू है। लहजे इलाही में जलाल बढ़ा। दूसरी दफा फिर सवाल हुआ बतला मैं कौन हूँ और तू कौन है? मैंने फिर अपने लहजे को अपने आवाज को आहिस्ता सा कहा मैं हूँ तू है। जब मैंने दूसरी दफा जवाब यही दिया तो अब फिर जलाल इलाही में इजाफा हुआ। जिब्राइल मैं पूछता हूँ बतला मैं कौन हूँ और तू कौन है? अब मैं घबरा रहा था, जवाब मुझे मुश्किल लगा। मैंने पुश से आवाज सुनी, यूं न कह मैं हूँ, अना अब्दुका जलील व अंत रब्बी अल जलील। जिब्राइल यूं कह मैं तेरा जलील बंदा जिब्राइल हूँ, तू मेरा जलील परवरदिगार रब है। जनाब जिब्राइल कहते हैं या रसूलल्लाह जब मैंने पिछले मुश्किल के हल के आवाज को मुश्किल से जो मैं जवाब नहीं दे रहा था, अब मैंने जो जवाब को पाया तो मैंने पहले जवाब दिया और मैंने कहा अना अब्दुका जलील व अंत रब्बी अल जलील, मैं तेरा जलील बंदा जिब्राइल हूँ और तू मेरा अजीम रब जलील रब अल्लाह है। जब मैंने ये जवाब दिया तो परवरदिगार ने फरमाया अंत सैयदुल मलाइका, जवाब तेरा मुझे बड़ा पसंद आया है और आज से तू मलाइका का सरदार है। जब मुझे मलाइका की सरदारी मिली तो मैंने पलट के देखा, जब मैंने पलट के देखा तो जो मुझे नजर आया वही है जिसके इस्तिकबाल के लिए खड़ा हूं। पता नहीं कहां से कहां बात चली गई। सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद इनके तारुफ को अपने हवाले से मत हिसाब किया कीजिए, या रब के कलाम से पूछा कीजिए या इनके फरमान से, या फिर ज्यादा से ज्यादा जनाबे जिब्राइल से पूछ लीजिए ये कौन है। सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद। जनाब इमाम ने जब इजाजत मांगी या यजीद इज़न ली हत्ता असअदा अला हाउलाइल अवाद, मुझे इजाजत दे। अभी अजीम वही होता है जिसकी अजमत का तारुफ दुश्मन भी करें। अपने तो करते रहते हैं। अब यहाँ यजीद कहता है नहीं, इसको इजाजत नहीं। यजीद का बेटा करीब आके यजीद को कहता है बाबा हमने हाशमियों की फसाहत और बलागत के बड़े चर्चे सुने हैं, जी चाहता है एक हाशमी हमारे पास आ गया है, इसकी भी फसाहत और बलागत हम सुन लें। यजीद के लफ्ज सुनिए। यजीद कहता है ये उस घराने से ताल्लुक रखता है, इन्नहु मिन अहल बैतिन कद ज़क्कुल इल्म ज़क्का। आप इसको नहीं जानते, इसका ताल्लुक उस घराने से है जिनको इल्म यूं मिला है जैसे परिंदा अपने बच्चे को खाना देता है। ये यजीद के लफ्ज़ है इस खुतबे में, इन्नहु मिन अहल बैतिन कद ज़क्कुल इल्म ज़क्का। हदीस पैगंबर तो आप सुनते रहते हैं और जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का ये फरमान है कि मुझे पैगंबर ने ऐसे इल्म दिया है जैसे परिंदा अपने बच्चे को खाना देता है। लेकिन ये जनाब इमाम के लफ्ज नहीं है, ये दुश्मन तारीफ कर रहे सैयद सज्जाद की। इन्नहु मिन अहल बैतिन कद ज़क्कुल इल्म ज़क्का, ये उस घराने से ताल्लुक रखता है कि जिसको इल्म ऐसे मिला जैसे परिंदा अपने बच्चे को खाना देता है। और फिर अगला जुमला कहता है ये इस मिंबर पे बैठ गया तो उस वक्त तक उतरेगा नहीं जब तक पूरे खानदान अबू सुफियान को जलील करके न रखे। अब इसका बेटा कहते बाबा
यजीद को कहता है कि इसको, ये तो कैदी है, इसका कोई और है ही नहीं। इसलिए कि खिताबत में जरूरी ये होता है कि खतीब के चाहने वाले हों। अब आप सारे अगर कोई मुखालिफ हो तो खतीब खिताबत कैसे करेगा? खतीब के लिए कोई 7-8 शराइत होती हैं, उनमें एक ही होती है कि कम अज कम उसके चाहने वाले मौजूद हो। दूसरा यह है कि उसको ज़हनी कोई परेशानी नहीं हो। तीसरा यह है कि उसको कोई बेचैनी न हो, आराम और सुकून से आया हो। अब इनमें से कोई चीज भी सैयद सज्जाद के लिए मुयस्सर नहीं थी, लेकिन उन दुश्मनों के मजमे में सब ने मजबूर किया यजीद को, और यजीद ने फिर इजाजत दे दी। और फिर यही खुतबा था जिस खुतबे की वजह से यजीद तख्त छोड़ के और वो जगह छोड़ के मुअज्जिन से अजान दिलवा के बेवक्ती और खुद घर भाग गया था। ये वो खुतबा है। अब इस खुतबे के पहले लफ्ज सुनिए, हमदे खुदा और नाते पैगंबर के बाद जनाबे इमाम फरमाते हैं उतीना सित्तन व फुज़्ज़िलना बिसबईन, अल्लाह ने हमें 6 चीजें अता फरमाई हैं, 7 फजीलतें हमें बख्शी हैं। सुभान अल्लाह। अब 6 फजीलतों में तारुफ हसबी है और 7 फजाइल में तारुफ नसबी है। हर आदमी के 2 पहलू होते हैं, एक हसबी फजाइल होते हैं, एक नसबी फजाइल होते हैं। हसबी फजाइल को हम यूं अगर कहें कि जाती कमालात होते हैं, और नसबी फजाइल यानी खानदानी फजाइल होते हैं। अब जनाब इमाम फरमाते हैं उतीना सित्तन, अल्लाह ने हमें 7 हसबी फजाइल बख्शे हैं, यानी हमें उनका मुस्तहिक समझा है और हमें वो अता फरमाए हैं, और 7 हमें नसबी फजीलतें बख्शी हैं। अब मैंने आपके सामने वो पहला हिस्सा बयान किया, सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद इमाम फरमाते हो उतीनल इल्मा वल हिल्मा वल फसाहत वस्समाहत वश्शुजाअत वल महब्बत फी कुलूबिल मुमिनीन। कमाल इंसानी का कुल खुलासा इन 6 लफ्जों में मौजूद है। कमाल इंसानी का कुल खुलासा, या यूं कहूं अजमत के उसूलों का मजमुआ यहाँ मौजूद है। तर्जमा सुनिए, इमाम फरमाते हो तीना, अल्लाह ने हमें अता फरमाया है। क्या अता फरमाया है? लफ्ज़ ओतीना। मेरी एक मुश्किल ये है कि मैं, क्योंकि मजमे के हवाले से आप बार बार मजलिसें सुनते हैं, लिहाजा कम अज कम जब वो खतीब जो है वो ओतीना कहता है तो लफ्ज़ अता आपके जहन में होनी चाहिए, इसलिए कि अता ओतीना, अल्लाह ने हमें अता फरमाया है। जब मैं इस लफ्ज़ से जनाब सैयद सज्जाद को देख रहा था ओतीना कि अल्लाह ने हमें अता फरमाया है, तो लफ्ज़ इन्ना आतैना का जहन में जरूर होना चाहिए। ये वो घराना है जिन पे अताए परवरदिगार बरसती है। सलावत पढ़ लीजिए। ओतीना, अल्लाह ने हमें अता फरमाया है। क्या अता फरमाया है? इमाम फरमाते हैं ओतीना इल्म, अल्लाह ने हमें इल्म अता फरमाया है। सुभान अल्लाह। वल हिल्म, अल्लाह ने हमें हिल्म अता फरमाया है। वल फसाहत, अल्लाह ने हमें फसाहत अता फरमाई है। वस्समाहत, अल्लाह ने हमें सखावत अता फरमाई है। वश्शुजाअत, अल्लाह ने हमें शुजाअत अता फरमाई है। वल महब्बत फी कुलूबिल मुमिनीन, अल्लाह ने मोमिनों के दिलों की मोहब्बत हमें अता फरमाई। ये 6 लफ्ज़ हैं। अगर जुमले का तर्जुमा अगले हिस्से का भी करता जाऊं, और जनाब इमाम फरमाते हैं वफुज़्ज़िलना बिसबईन, अल्लाह ने हमें 7 फजीलतें अता फरमाई हैं। मिन्ना अन्नबियुल मुख्तार मुहम्मदा, अल्लाह ने अपना चुना हुआ नबी मोहम्मद हम में से रख दिया है। व मिन्ना सिद्दीक़ हाज़िहिल नबी, और इस उम्मत मुस्तफ़ा के दरमियान में से मुस्तफ़ा की तस्दीक करने वाला अली भी हम में से है। वमिन्ना असदुल्लाह व असदुर रसूल, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का शेर जनाब हमजा भी हम में से है। वमिन्नत तैयार, बाजू कटा के जन्नत में महवे परवाज तैयार भी हम में से है। मिन्ना सिबता या हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत के 2 सिबतैन हसन और हुसैन भी हम में से है। वमिन्ना महदी हाज़िहिल उम्मा, और इस उम्मत का क़यामत तक का हिदायत का ज़ामिन महदी बरहक भी हम में से है। अब ये हिस्सा यहाँ
मुकम्मल होता है। अब पलट के वो तीना अल्लाह ने हमें अता फरमाया है। अब हम कहते हैं, हम जब आले मोहम्मद के फजाइल पढ़ते हैं तो लोग कहते हैं ये आले मोहम्मद को खुदा से मिला देते हैं। इल्म का तज़किरा हो तो कहते हैं जी आले मोहम्मद को ये खुदा से मिला देते हैं। इनकी सखावत का तज़किरा हो तो कहते हैं ये खुदा से मिला देते हैं। इनकी शुजाअत का तज़किरा हो तो कहते हैं खुदा से मिला देते हैं। हम कहते हैं बंदगाने खुदा कम अज कम एक लफ्ज़ तो याद करो, होती ना अल्लाह ने हमें अता फरमाया है। अता करने वाले का नाम अल्लाह है और जिनके पास ये चीजें हैं उनका नाम आले मोहम्मद के साथ दिल बोला अली मौला अली मौला, मेरा मौला मेरा मौला अली मौला अली मौला, सभी बोली फलक बोला अली मौला अली मौला, नबी बोला वसी मेरा अली मौला अली मौला, खतीब मरहूम से किसी ने यही जुमला कहा, आप आले मोहम्मद के फजाइल में भूल जाते हो खुदा को और इनको खुदा से मिला देते हो। मैं जुमला रिपीट कर रहा हूँ, वो तीना किसी के जहन में हो, कौन कह रहे हैं? सैयद सज्जाद कह रहे हैं। अब जितने फजाइल जी चाहे बयान करते रहो, फकत याद रखो इनको फजाइल अता करने वाले का नाम है अल्लाह। उस मरहूम खतीब से पूछा, कहा किसी ने कि आप जब फजाइल पढ़ने लगते हो तो इनको खुदा से मिला देते हो। नहीं, आप न खुदा को समझे न आले अबा को समझे, इसलिए कि हम छोटे छोटे लोग हैं। हम कौन होते हैं कि हम किसी को खुदा से मिला दें? तवज्जो फरमाइएगा। मरहूम फरमाने लगे, ये तो आले मोहम्मद का करीम घराना है जो हम जैसे गुनाहगारों का हाथ थाम के हमें खुदा से मिला देते हैं। हमें खुदा से मिला देते हैं। आले मोहम्मद तो वही हैं जो लहज़े में हुर गुनाहगार को वलीउल्लाह बना देते हैं। यही तो है खुदा से मिलाना। ये जो 2 रकत नमाज हम पढ़ते हैं सुबह की, 2 रकत नमाज सुबह पढ़ रहा हूँ वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह, इल्लल्लाह या इल्लल्लाह, सलावत पढ़ लीजिए। अब यकीनन आपके दरमियान तो कोई नहीं होगा, हम बाज़ औक़ात जो है वो अपनी ज़बानों में चूँकि लफ्ज़ अरबी के हैं, इला भी और इल्ला भी, तो हम कभी इल्ला की जगह पे इला कह जाते हैं और कभी इला की जगह पे इल्ला कह जाते हैं। लिहाजा नमाज में क्या है, 2 रकत नमाज पढ़ता हूँ या जो भी इबादत होती हुई है जिसमें कुर्बतन इल्लल्लाह का इरादा हो और नियत हो। मजलिस कब इबादत बनेगी? जब उसमें नियत हो, मैं आज मजलिस हुसैन इब्न अली में जा रहा हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह, मैं लोहा पढ़ रहा हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह, मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह। अगर कोई और मकसद पढ़ने वाले के मिंबर के पर बैठने वाले के जहन में कोई और आ गया तो वह अल्लाह के लिए नहीं होगी, किसी और के लिए होगी। अगर किसी और के ये हो तो फिर इबादत नहीं होती। अब लिहाजा नियत क्या होनी चाहिए? कुर्बतन इल्लल्लाह। औक़ात लोग कह जाते हैं कुर्बतन इल्लल्लाह, साहब के कुर्ब के लिए मगर अल्लाह के लिए नहीं। तो ये कुर्बतन इल्लल्लाह हम 2 रकत नमाज क्यों पढ़ते हैं? अल्लाह के करीब हो जाएं। तो मरहूम का जुमला यही था कि हम कौन होते हैं इनको खुदा से मिला दें। ये तो आले मोहम्मद का करीम घराना है जो हम जैसे गुनाहगारों का हाथ थाम के हमें खुदा से मिला देते हैं, हमें खुदा से मिला देते हैं। मुझे अपने उस्ताद मोहतरम आयतुल्लाह अल-उज़्मा गए हुसैन मज़ाहिरी का जुमला याद आ रहा है। वो फरमाया करते थे कि शिया जनाब जब भी बैठते हैं तो बड़े फखर से कहते हैं हम जन्नती, माशाअल्लाह। हाँ, बड़े फखर से कहते हैं हम जन्नती। मोहतरम है इस्मान में इस वक्त परवरदिगार से तो सलामती अता फरमाए। और बातें थे, अगर कोई नाबालिग बच्चा मर गया तो कहाँ जाएगा? जन्नत में जाएगा। और अगर कोई शख्स ऐसा जिसका दिमाग काम नहीं करता, ज़हनी तौर पर माजूर है, उस पर अहकाम शरीयत वाजिब ही नहीं है, ना उस पर नमाज है, न रोज़ा है, न हज है, न खुम्स है, न ज़कात है, क्योंकि दिमाग काम नहीं करता। अब वो अगर दुनिया से चला जाता है तो कहाँ जाएगा? जन्नत में जाएगा। इसलिए कि कोई उस पर वाजिब नहीं था, उसने तारकी नहीं किया, उस बेचारे का दिमाग ही काम नहीं करता था, लिहाजा उसने नमाज नहीं पढ़ी।
पत्नी आप पहुंचे या नहीं। सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद। तो मोहतरम फरमाते हैं, उस्ताद मुकर्रम फरमाते हैं, अब इंसान सारी जिंदगी जो है वो इबादतें करे और उसका हदफ ये हो मैं भी जन्नत में जाऊंगा, तो ये कमाल कौन सा हुआ जहाँ नाबालिग बच्चा भी जाएगा, जहाँ दीवाना भी जाएगा, आप भी चले गए, तो ये कमाल कौन सा हुआ। सोच लीजिए और सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद। ये सारा किस लिए? उस्ताद मोहतरम की लफ्ज दोहराता हूँ, वो फरमाते हैं शिया तू इससे बुलंद है इसलिए कि तेरे मौला हैं मिसबाहुल हुदा, चराग़ हिदायत। दुनिया अंधेरियों में तारीकियों में ठोकरें खाती फिर रही है। तेरा कमाल ये नहीं है कि तू जन्नत में जाए, तेरा कमाल ये है कि जन्नत से दूर जाने वाले गुमराहों की तरफ आगे बढ़ के कभी मजलिस की सूरत में, कभी तिलावत की सूरत में, कभी जिक्र हुसैन की सूरत में उन गुमराहों के हाथ थाम के उनका जन्नत में ले जा, ये तेरा कमाल। शिया का कमाल तो यही है, इसलिए कि बारिश कुरान आपने सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद। वो तीना किसी को याद रहे तो सारे अकायद महफूज हो जाते हैं और किसी को भी गुस्ताखी करने की इजाजत नहीं मिलती, इसलिए कि अता करने वाला अल्लाह। और अगर और अल्लाह को करीब से समझना है, एक मिस्र के आलिम है सहीफे सजादिया, यकीनन आप हजरात ने पढ़ा होगा, मुफ्ती जावर हुसैन मरहूम का उर्दू तर्जमा है, उसके मुकद्दमा में मिस्र के एक बहुत बड़े स्कॉलर का ये मजमून लगा हुआ है। वो कहते हैं अगर सैयद सज्जाद न होते तो हमें रब से बातें करने का ढंग ही मालूम न होता। अगर सैयद सज्जाद न होते तो हमें रब से कलाम करने का ढंग ही मालूम न होता, इसलिए कि सैयद सज्जाद तो वो हस्ती हैं जिन्होंने रब से कलाम करने का ढंग सिखाया। सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद। पहली चीज जो जनाब सैयद सज्जाद फरमाते हैं, हमें रब ने इल्म अता फरमाया है। अब मैंने अर्ज किया है कि तमाम कमालात इंसानी के खुलासे को जनाब इमाम ने इन लफ्जों में समेट लिया है। अगर वक्त के दामन में, चूंकि ये मेरा ऐसा मौजू है कि मैं इन जुमलात में से इल्म पे, हिल्म पे, फसाहत पे, शुजाअत पे, पूरे इन पे एक अशराए ज़ैनबिया या पढ़ चुका हूँ। अब वो इसलिए कि किस किस को इल्म रब ने अता फरमाया है, इसी से बहस हल हो जाती है। जनाब इमाम हसन मुज्तबा बैठे हैं जनाब अमीर के पास, और एक शख्स आके सवाल करता है इमाम से, अमीर उल मोमिनीन से सवाल जो किया उसने तो इमाम फरमाते हैं मेरे बच्चों में से किसी से पूछा। उसने जनाब इमाम हसन मुज्तबा का बिल्कुल छोटा सा सिन है, उनसे पूछा, बड़ा मुतमईन हुआ, बड़ा सुरूर आया उसको, और फिर सवाल का जवाब पाके जनाब अमीर की तरफ रुख करके कहते हैं कि या अली, इस बच्चे को इस बचपने में किसने सिखाया? अब कहना तो चाहिए था ना मेरा ही बेटा है। नहीं, फरमाया जिस ने दाऊद के बेटे सुलेमान को सिखाया था। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, की अगर बात से आ जाएंगी तो फिर ये एक मौजू है जो अशरा भी इसके लिए, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस पे पढ़ चुका हूँ। मेरा सिलसिला यही है कि मैं अशरा ज़नबिया में या अशरा सजादिया में अक्सर इन्हीं खुतबात को मौजू बनाता हूँ और इसी पे गुफ्तगू होती है। अब आप कमालात इंसानिया को देखें तो इन 5 जुमलों में मुनहसिर हो गए हैं। इल्म है, हिल्म है, फसाहत है, शुजाअत है, सखावत है, और उसके नतीजे का नाम है मोहब्बत, जो छठा जुमला है। आप खिलाफत की बात सुनते रहते हैं, जनाब आदम को खिलाफत क्यों मिली? इल्म की वजह से। ओ तीन अल इल्म, चौथे मां फरमाते अल्लाह ने हमें इल्म अता फरमाया है। माशाअल्लाह। वल हिल्म, कुरान में जनाब इब्राहीम की सिफत बयान की गई है, हलीमन नबिया,
बल फसाहा, अल्लाह ने हमें फसाहत अता फरमाई है। मूसा मांग रहा था मुझे हारून दे, क्यों हुआ अफसह मिन्नी लिसानन, खलीफा बनने का सबब यह है कि वो फसीह है। मैं इससे ज्यादा जो है नीचे अपने आप को नहीं ले जा सकता। इल्म की वजह से खिलाफत मिली है जनाब आदम को, इल्म का लक़ब, हलीम का लक़ब मिलता है जनाब खलीलुल्लाह को, फसाहत की वजह से खिलाफत मिलती है जनाब हारून को, और शुजाअत की वजह से तालूत को जो खिलाफत मिली, फरमाया तालूत को हमने खिलाफत क्यों दी, बस तनफिल इल्म वल जिस्म, उसमें इल्म आपसे ज्यादा था और उसमें जिस्मानी ताकत ज्यादा थी, ये शुजाअत की वजह से। और अब मैं क्या कहूं, मैंने पूरे कुरान को ढूंढा, कहीं कुरान में लफ्ज़ से समाहत नहीं आया। समाहत का माना यहाँ है सखावत, कोई जो सखावत इनको मिली है, कुरान ने किसी की सखावत का बयान ही नहीं किया। चमन चमन कली कली, अली 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 अली, नगर नगर गली गली, अली 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 अली, नारे हैदरी, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलावत। हदीस अक्सर आप सुनते रहते, मैं एक जुमला नकल करता हूँ और देखता हूँ आपका हदीस के इल्म पे कितना एक शौक है और प्यार है। एक हदीस जिसको फखरुद्दीन राजी मुफस्सिर कुरान ने अपनी किताब अरबईन में ये लिखा है, उसने इस हदीस को हदीस तशबीह कहा है। हदीस क्या है? हदीस पैगंबर बड़ी तुलानी है। मन अराद अन यंजुर आदम फी इल्मिह। अब मैं आगे हदीस नहीं पढ़ता इसलिए कि ये सुनी सुनाई आपकी हदीस है, अलबत्ता हदीसों को दोहराना भी ये सवाब होता है। मन अराद अन यंजुर इला आदम फी इल्मिह, पत्नी मेरे साथ चल रहे हैं आप, क्या लफ्ज़ ज़हन में रहे जनाब सैयद सज्जाद का ओतीन अल इल्म। जनाब पैगंबर फरमाते हैं मन अराद अन यंजुर आदम फी इल्मिह, जो चाहता है कि आदम को उनके इल्म में देखे, इब्राहीम को उनके हिल्म में देखे, नूह को उनके सब्र में देखे, मूसा को उनकी शुजाअत में देखे, ईसा को उनकी ज़ुहद में देखे, क्या करे फल यंजुर इला अली इब्न अबी तालिब। के खुलासे का नाम है अली, वो अली को देख ले। फखरुद्दीन राजी कहते हैं ये हदीस तशबीह ये बतलाती है कि अली, तवज्जो फरमाइएगा, ये हदीस ये बतलाती है, हदीस तशबीह कि अली इन सिफात में नबियों के बराबर हैं। ये हदीस ये सुनिए, मैं अपना अकीदा नहीं बयान कर रहा, ये अहले सुन्नत बरादरान का अकीदा बयान कर रहा हूँ। मेरा अकीदा क्या है ये, या जनाब हुर्रा को मालूम होगा जो दरबार यजीद में बयान कर रही थी, दरबार इब्ने हुजाज में, दरबार हज्जाज में बयान कर रही थी। अब फिर और दरबार आ गया दरमियान में, आप खामोश हो गए। सलाम पढ़िए मोहम्मद इल्म की बात हो रही है। हाँ, इल्म में आदम को जो देखना चाहते हैं, तो फखरुद्दीन राजी कहते हैं कि ये हदीस तशबीह ये बतलाती है कि अली इन सिफात में नबियों के बराबर हैं। बिस्मिल्लाह। मैं अपना अकीदा बयान करता ही जाऊं, दिल नहीं चाह रहा कि आगे गुजर जाऊं। बिस्मिल्लाह। इसलिए कि फखरुद्दीन राजी, बराबरी तब होती जब इल्म फकत इल्म ही होता। बिस्मिल्लाह। वो हैं जिसमें तमाम अंबिया के चुने हुए फजाइल इकट्ठे हैं, उसको अली कहते हैं। अलहदा होते तो बराबरी को मानते, अलहदा होते तो इल्म जनाबे इल्म होता फकत, तो जनाबे आदम के साथ तशबीह थी, फकत इल्म होता तो जनाब इब्राहीम के साथ। अब सारे जमा है यहाँ फजाइल। बिस्मिल्लाह। अब नकल कर दो उनका जुमला, फखरुद्दीन राजी का ही पूरा। कहते हैं कि इस हदीस का मफहूम ये बनता है कि अली तमाम अंबिया के बराबर हैं और कोई सहाबी भी किसी नबी के बराबर नहीं हो सकता। अली अगर नबियों के बराबर है तो कोई सहाबी फिर अली के बराबर, कोई सहाबी फिर
علی کے برابر نہیں ہو سکتا. علی وہ ہے جو نبیوں کے برابر ہے. باقی مناظرہ اور یہ چیزیں تو میرا اب انداز ہی نہیں ہے. میں پنجابی کے خطیب کا بڑا جملہ مجھے پسند ہے. وہ کہتے ہیں حلالی مرید وہ جو اپنے پیروں کی تعریف کرے. مجھے کیا کسی کے پیروں کی, میں تو اپنے پیروں کی تعریف کرتا ہوں. محمد والے محمد بلندر سلام. اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے. بسم اللہ. ہاں اب یہ سارے فضائل اس ایک میں جمع ہیں. اور آپ زیارت وارثہ پڑھنے والے لوگ ہیں, پڑھنی چاہیے یہ زیارتیں, اس لیے کہ آل محمد کی زیارتیں پڑھنا یا زیارتیں کرنا یہ ان سے تعلق کے اظہار کا ذریعہ ہوتا ہے. آج ہم 40 امام حسین میں 20 ملین کا جو اعلان ہو رہا ہے, یہ کربلا میں جمع ہو کے یہی تو بتلا رہے ہیں کہ ہمارا اس گھرانے سے تعلق ہے. یہ سلام اگر ہم نہیں پہنچا سکتے, مجھے تعجب ہوتا ہے. جس سے پوچھو کہ وہ دیکھا ہے تو ہر کوئی توجہ سے کہتا ہے ہمارے لیے بھی دعا کرو اگلے سال ہم بھی جائیں. ہاں یعنی جو گئے اور جو نہیں گئے ان کا بھی دل وہاں ہے. ہم اسی کو حسینی کہتے ہیں, رہے کہیں کونے دنیا میں لیکن اس کا دل کربلا میں ہو تو وہ حقیقی شیعہ ہوتا ہے. یہ زیارات جو میرے استاد محترم آیت اللہ العظمہ آغا جواتی عاملی کی کتاب ہے زیارت جامع کبیرہ کی, یہ تھوڑے علمی چیزیں الحمدللہ پڑھے لکھے افراد آپ تشریف فرما ہیں. 8 جلدیں ہیں زیارت جامع کبیرہ کی. تشریح کے میرے استاد محترم تفسیر کے ہمارے استاد ہیں. اور یہ جو جناب جبرائیل والا واقعہ میں نے ناقل کیا ہے تعارف کے کون ہے, میں کون ہوں اور تو کون ہے, یہ انہوں نے زیارت جامع کبیرہ کی شرح میں لکھا ہے. تو زیارت جامعہ کے شروع میں وہ زیارت کا فائدہ بتلاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ زیارت حقیقت میں نزدیک ہو یا دور ہو, اگر آپ کسی کو بار بار سلام کرتے رہتے ہیں کتنے ہی گناہگار ہوں گے, کبھی تو پلٹ کے کہے گا اچھا اب تو اس کو سلام کا جواب دے. لہذا ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے, ہم گناہوں کا اقرار کر کے ان کو سلام کرتے ہیں. وہ کریم گھرانہ ہے, کبھی تو کہے گا اچھا اب مان لیا آپ کو. لہذا سلام صبح و شام کرتے رہا کرو. اور بڑا خوب طریقہ بنایا کسی بزرگ نے, جو ہر واجب نماز کے بعد تاکیبات کے طور پر ہم سلام کرتے ہیں. یعنی تاکیبات کے بعد سلام کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکیبات کے نماز کے بعد کی بات کی ہے. میرا اپنا نظریہ یہ ہے, اور میں اس میں ایک شعر بڑا مجھے پسند ہے نجم افندی مرحوم کا. وہ نماز کے بعد کی بات نہیں کرتے, وہ نماز سے پہلے کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دل کی قوت کے لیے ذکر خدا سے پہلے. بات سمیٹ رہا ہوں اس لیے کہ آپ کو ٹھکانا مقصود نہیں ہے. دل کی قوت کے لیے ذکر خدا سے پہلے یا علی کہہ کے مصلی پہ قدم رکھتا ہوں. دل کی قوت کے لیے ذکر خدا سے پہلے یا علی کہہ کے مصلی پہ قدم رکھتا ہوں. اس لیے کہ میں اللہ کو یاد کروں, میں کون ہوتا ہوں, مجھے کیا معلوم کہ اللہ کو کیسے یاد کرنا ہے. یہ تو میں علی سے سیکھتا ہوں, سجاد سے سیکھتا ہوں. اور پھر نجم کا شعر یہاں کہتا جو نجم کہتے ہیں علی ملے تو ملے خانہ خدا سے ہمیں. علی ملے تو ملے خانہ خدا سے ہمیں, خدا کو ڈھونڈا تو وہ بھی علی. بڑے موحدوں کو یہ کہتے ہیں آؤ رب کی تلاش کرنی ہے تو نہج البلاغہ کو پڑھو. رب کو ڈھونڈنا ہے تو صحیفہ سجادیہ کو پڑھو. رب کی تلاش کرنی ہے تو سید سجاد سے پوچھو. رب کی تلاش کرنی ہے تو حسین سے پوچھو. جوش مرحوم نے یہی تو کہا تھا, وہ جو سجدوں سے کھینچتا ہے مسجود کی طرف. سید الشہداء کے سجدے کی طرف اشارہ کر کے جوش مرحوم کہتے ہیں وہ جو سجدوں سے کھینچتا ہے مسجود کی طرف, وہ تنہا ایک اشارہ ہے معبود کی طرف. یہ سجدہ نہیں تھا بلکہ یہ کھینچ کے رب کی طرف لے جا رہا تھا. وہ ہے ہمارا حسین. لہذا موحدوں سے ہم کہتے ہیں ہم حسین ابن علی سے تو یہ قول و قرار کرنے کربلا جاتے ہیں, تیری ذات کا احسان کہ ہمیں خدا سے ملا دیا. اور یہ سلام اسی کا. لہذا کوئی کہے کہ یہ زیارت بدعت ہے اور یہ زیارت
फलां है और इससे कुफ्र होता है और शिरक होता है, उनको कहने दो। आप अपने अकीदे को बढ़ाते जाओ और अपने सर दामन हुसैन में देखे और उस सीरत को अपनाते जाओ कि तरक्तुल खल्क तुर्रन फी हवाक वही तमतुल अयाल लिकई अराक लौ कत्तऊनी बिस्सुयूफ इरबन लमा हन्नल फुआद इला सवाक। हुसैन सजदे में सर रख के कहते हैं मैंने सारा कुछ तेरी राह में दे दिया। हाँ, मैंने सारा कुछ, बिल्कुल बात दूरी रह गई। वो तीन इल्म, अल्लाह ने हमें इल्म अता फरमाया है और ये सिफात जिसमें हो उसकी मोहब्बत हो जाती है। वल मोहब्बत फी कुलूबिल मोमिनीन। और इस जिक्र का ख्याल कीजिए, मैंने इब्तिदा में दुआ में ये कहा था ये हमारे पास अमानत है किसी की। मैं अब यहाँ इस काबिल हूँ तो मैं समझता हूँ मेरे माँ बाप का एहसान है। हमारा पता तब चलेगा जब हम अपनी नस्ल को सिखाएंगे। मैं अभी नहीं जानता इस माहौल को। आप जनरेशन का गैप अपने दरमियान देख लीजिए, क्या हम अपने जवानों को ला सके हैं यहाँ? अगर ला सके हैं तो फिर हमने अपनी उस अमानत की हिफाजत की है और उस अमानत को मुंतकिल की है। ये मैं अगर आजादार हूँ तो मेरा कमाल क्या है? ये तो मेरे माँ बाप का कमाल है। हाँ, ये तो मेरे माँ बाप का कमाल है। मेरा कमाल तब होगा जब मेरी औलाद मेरी जैसी बनेगी। हाँ, बल्कि यूं होना चाहिए, मुझसे बढ़ के आके उनको आजादार होना चाहिए। हमें तो माओ ने मरने की तरफ तैयार करके भेजा, जाओ जुलूस निकल रहा है। मैंने पाकिस्तान में ये देखा है, अपनी आंखों से देखा है और हम बड़े करीब से ये कातल और ये जलाओ और घिराओ इससे बड़े और ये जेलें और बड़े करीब से देखी हैं। हाँ? और माओ को मैंने देखा है अपने बच्चों को तैयार करते हुए। और मैंने कमाल जो देखा है शिया में वो ये है कि जिस इलाके में जुलूस पर खतरा ज्यादा हो वहां उनकी शिरकत ज्यादा हो। और इस दफा क्यों उलमाए किराम फरमाते हैं इस दफा करबला में शिरकत क्यों ज्यादा हुई? पहले कभी तारीख करबला में इतनी शिरकत नहीं हुई, इस दफा क्यों हुई? वो जो बड़े अपने आप को मुवहिद कहते हैं वो कहते हैं करबला आने वालों को हम मारेंगे। ये हर एक कदम बढ़ा के कहता है हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। इस दफा करबला में चूंकि दाइश ने बाकायदा धमकी दी थी और मैं आज ही बल्कि टीवी पे देख रहा था, कुछ पकड़े भी गए हैं वो कि इनको मारो। तो जहां मरने की बात होती है ये ज्यादा इकट्ठे होते हैं। बिस्मिल्लाह। लिहाजा अजीजन इस माहौल में इस मुल्क में जरूरत यह है कि हम अपने बच्चों में ये जज्बा पैदा करें जो हमारी माँ ने। मैं अक्सर दुआ किया करता हूँ कि माँ ने अपने सीने में ग़िज़ा के तौर पर मोहब्बत खिलाई और लोरी के अंदाज में कानों से सुनाई। बाप ने फिर उंगली पकड़ा के दामन दर अहले बैत पे लाके इसकी अजमत बतलाई। अब हैं तो ख्याल किया कि जी जवान यहाँ हैं या कहीं हैं या कब्र में भी जा चुके हैं। सलावत पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। गया मेरा मौजू, मुझे चाहिए ज़हन में ये था कि चंद जुमलात जनाब सैयदा के खुतबे के भी नकल करूँगा, तो जो सुन लीजिए तबर्रुक। जुर्रत जनाब ज़ैनब देखिए, झलक जनाब अली देखिए। यजीद को मुखातब होकर कहती है बीबी यजीद यब्नतुलका, ए हमारे आजाद करदा गुलाम के बेटे। अल्लाहु अकबर। अब मैं क्या करूं अगर मेरी कौम को ये भी न मालूम हो कि ये तुलका कब कहा गया था? जब मक्का फतह हुआ, बुजुर्गान तशरीफ फरमा हैं और मुझे यकीन है कि जब मक्का फतह हुआ था तो जनाब पैगंबर फरमाते हैं, ये 7 या 8 हिजरी का वाक़या, 7 हिजरी ज़ाहिरन। जब मक्का फतह हुआ तो जनाब पैगंबर अकरम ने ऐलान किया था कि अबू सुफियान का घर अमन की जगह है, जो वहां पनाह लेगा वो महफूज होगा। कुर्बान जो आले अबा आपकी इज्जत और आपकी अजमत पर कि अबू सुफियान जैसे दुश्मन का घर भी जाए अमन। और अगर हम अब क्या करें, हम जो अगर चंद मोमिन आपस में लड़ रहे हों तो हम किसके मानने वाले हुए फिर? हाँ, अबू सुफियान जैसे दुश्मन को माफ कर रहे कौन, और हम अपने सगे भाई को ना माफ कर सकें? हम कहाँ खड़े हैं? और अबू सुफियान का घर है जाए पनाह,
सबको इकट्ठा, जब सब इकट्ठे हो गए, पाक पैगंबर फरमाते हैं जाओ अंतुम तुलका, आपको हमने आजाद कर दिया। ये लफ्ज है तुलका। 25 साल बाद नहजुल बलागा के खत नंबर 28 में जनाब अमीर ने फिर ये लफ्ज इस्तेमाल किया है, मालितुलका अबना तुलका। वो फजाइल का एक दरिया है खत नंबर 28, जहाँ जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं ये अपने फजाइल नहीं बयान कर रहा, रब का हुक्म ये है कि अपनी तारीफ मत किया करो, लिहाजा मैं अपने फजाइल नहीं बयान कर रहा, लेकिन उधर रब का हुक्म ये है अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, रब का हुक्म ये भी है कि रब की नेमतों को बयान करते रहा करो। मैं अली या अपने फजाइल बयान नहीं कर रहा, रब की नेमतों को याद कर रहा हूं। ये खत नंबर 28 में बड़ा दिलचस्प और फजाइल का मुझे बहुत पसंद है ये खुतबा, फजाइल के खत, ये फजाइल के हवाले से। अब वहां भी जनाब इमाम ने फरमाया कौन होते आप हमारा मुकाबला करने वाले और हमारी बराबरी का दावा करने वाले, मालिक तुलका अबना तुलका, हमारे आजाद करदा गुलामों और हमारे आजाद करदा गुलामों के बेटों को क्या होता है कि वो हमारा मुकाबला करें। अब ये है लफ्ज़ से तुलका। अब जनाब सैयदा कहते हैं यबन तुलका, ये हमारे आजाद करदा गुलामों के बेटे। पे बुलंदतर सलावत। जनाब सैयदा फिर आगे खुतबा शुरू करती हैं, फरमाती किद कैदक वसअसायक व नासिब जुहदक फवल्लाहि ला तमहु ज़िक्रना वला तुमीतु वहयना वला तुदरिकु अमदना वला तुरखिसु अनका आरहा। यजीद तू अपने सारी चालाकियां और मकर इस्तेमाल कर ले, तू अपने सारी ताकतें खर्च कर ले, तू अपना सारा जोर लगा ले, मैं ज़ैनब रब की कसम खा के कह रही हूँ, ला तमहु ज़िक्रना, तू हमारा जिक्र नहीं मिटा सकता, वला तुदरिकु अमदना, न तू हमारा मकाम पा सकता है, और वला तुरखिसु अनका ला तमहु ज़िक्रना वला तुमीतु वहयना, न तू हमारा जिक्र मिटा सकता है, न हमारे पैगाम को छुपा सकता है। लफ्ज़ वही इस्तेमाल किया जनाब सैयदा ने, वक्त होता तो मैं इसकी तशरीह करता, वला तमहु वहयना, न तू हमारी वही मिटा सकता है। अगर तकरीरें और खिताबत सुनने वाले अफराद और बरादरान अगर यजीद के अशआर याद हों, यजीद कह रहा था ला मलकुन जाअ वला वहयुन नज़ल, न कोई फरिश्ता आया है न कोई वही नाज़िल हुई है। यजीद ने लफ्ज़ वही इस्तेमाल की थी, जनाब सैयदा ने उसी अंदाज में जवाब दिया, ला तुमीतु वहयना, जो वही आती रही उस वही को तू मिटा नहीं सकता, अभी ज़ैनब मौजूद है। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। अहले बैत के दुश्मनों पर लानत, बेशुमार लानत, बेशुमार नारे हैदरी, बाकी भी सलामुल्लाह अलैहि पे सर झुकाकर बुलंदतर सलावत। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ला तमहु ज़िक्रना, तू हमारा जिक्र नहीं मिटा सकता, वला तुमीतु वहयना, न तू हमारे पैगाम को छुपा सकता है, वला तुदरिकु अमदना, तख्त पे बैठना और है, तख्त पे बैठ के फौज सामने इकट्ठी करके तू हमारे मकाम को नहीं पा सकता। वला तुरखिसु अनका आरहा, यजीद तू अपने दामन पर ये खबासत का लगा हुआ धब्बा क़यामत तक धो नहीं सकता। और यूँ फिर जनाब सैयदा ने खुतबा जारी रखा। इसको याद रखिएगा, ज़रूरत यह है कि हम इन खुतबों को दुनिया वालों को बतलाएं आले मोहम्मद का दीन पर खर्च किया हुआ है और उन्होंने किस जुर्रत से इस दीन को बचाया है। हाँ, सैयद सज्जाद के खुतबे देखिए और यहाँ इस बीबी के खुतबे देखिए, और फिर कभी कभी बैठ के ये अयाम वो हैं जो 40 की सूरत में आप मना रहे हैं। ये मैं कल परसों किसी मजलिस में जुमला मैंने कहा, कुरान का मौसम में बहार क्या है? माह रमज़ान, हुसैन इब्न अली की याद की बहार का मौसम है। बच्चा बच्चा, छोटा बड़ा, गरीब फकीर मिस्कीन दौलतमंद, हर कोई हुसैन हुसैन हुसैन। हाँ, इस हकीम मुतलक के दरवाजे पे बैठ के कभी सोचे हमने कि रूहानी तौर पर हमारे अंदर कोई बीमारी है? हम हुसैन से पूछ सकते हैं, मौला तूने तो होर जैसे गुनाहगार को भी वली बना दिया था,
हमारे अंदर भी कोई कमी है तो हम भी सवाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी कमी का एहसास ही नहीं करेंगे, सबसे बड़ा नेक मैं, सबसे बड़ा इबादत गुजार मैं, सबसे बड़ा दीन का ठेकेदार मैं, तो फिर मुझे अभी जरूरत ही नहीं है किसी इस्लाह की। इस्लाह की जरूरत तभी होती है, डॉक्टर साहबान तशरीफ फरमाए, अब कोई आदमी डॉक्टर के पास जाए ही नहीं। यहाँ यूके के कानून के मुताबिक अब अगर करीब करीब कोई आदमी गया और मर गया तो उसका ऑपरेशन और पोस्टमार्टम नहीं होगा, इसलिए कि डॉक्टर कहेंगे हाँ इसको ये बीमारी थी। और अगर किसी ने अपनी बीमारी को समझा ही नहीं, 6 महीने मुमकिन है मसलन गया ही नहीं डॉक्टर के पास, अब वो क्या होगा, उसका पोस्टमार्टम करते हैं। ये तफसीली इसलिए कि अगर डॉक्टर के पास जाता है बीमारी हो तो भी उसको कुछ ना कुछ आसानी होती है। हकीम का नाम हो हुसैन, और फिर उसके मदरसे में, उसके शिफाखाने में 40 दिन गुजर जाएं और मरीज मरीज रहे, मुझे बतलाओ तौहीन किसकी होगी? हाँ, गिला हकीम पे होगा या नहीं? इसी को तो सैयद जनाब इमाम जाफर सादिक हमारे शियो हमारे लिए बायस इज्जत बनो, बायस नंगो आर न बनो। साथ में लाले विलायत फरमाते हैं 1000 की आबादी हो, तू उसमें अकेला हो, तेरे शिया होने की निशानी ये है तू उन पर असरअंदाज हो, वो तुझ पर असरअंदाज ना हो। ये किसके लिए है? ये मेरी इस्लाह के लिए है। माशाल्लाह। आइए देखिए, और फिर अजब एक नुस्खा, पुराने अफराद जो हिकमत के साथ कभी वास्ता पड़ा तो पुराने हकीम थे, कामयाब हकीम वो होता था कि कम से कम नुस्खे में बहुत सारी बीमारियों का इलाज करते थे। हाँ, हुसैन ने करबला बसा के अजीब नुस्खा तैयार किया, जिस नुस्खे का नाम है आंसू। हाँ, जितने बड़े से बड़ा गुनाहगार और हलियत तौबा, हुसैन वसीला बनते हो मेरी तौबा का। आंसू जो बह गए, सारे गुनाहों की आग को मिटा दिया। हलियत तौबा कि हम भी 40 दिन के बाद, 40 तो 40वां मना रहे हैं, वैसे तो हमारे 50 दिन हो गए। हाँ, पहली मुहर्रम से 20 सफर तक, क्या हम कह सकते हैं मौला हमारा और है कौन? और फिर कुछ ना बन पड़े ना। सोचा कीजिए, मैं जनाब अमीर इस्लाम के एक नाजुल बलागा का जुमला देख रहा था। इमाम फरमाते हैं कि तूबा लिमन बका अला खतियते, खुश किस्मत है वो शख्स जो अपनी खताओं पे रो पड़े। क्या मैं कभी हुसैन को वास्ता बना के रोया, मौला मैंने ये गलती की है, तू वास्ता बन जा, मैं रब से दूर चला गया हूं। और अजीजान, ये अय्याम मरबूत हैं हुसैन की मजलूमा बहन से। कौन? ज़ैनब। काश ये मसाइब हमें न पढ़ने होते और उस मखदूमा का नाम हम यूं खुलेआम न लेते। भरा घर लुटा के, अब्बास जैसे भाई ज़िबा करा के, अकबर जैसे भतीजों के जिगर की बर्छियां देख के, कासिम के टुकड़े उठा के, 6 माह के अस्कर को पानी पिला के करबला की मकतल से यूं चली गई जैसे इन सब के मिशन की विरासत अदा करने वाले को जाना चाहिए था। रब्बना तकब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, कह रही थी खुदाया हमारी ये कुर्बानी कबूल करना। फिर पहुंच गई वहां जहां जाने ने 35 साल सैयद सजाद को रुलाया। शाम, कैसे तेरी कैद निभ गई बीबी, लेकिन जब कैद की रिहाई का ऐलान हुआ रो के कहती है सैयद सजाद मैं यूं नहीं जाऊंगी शाम से। जी अम्मा का यजीद को कह मेरे 3 तकाजे हैं। क्या अम्मा? कहा करबला की लूट का माल दे दे।
अजब सवाल है, मेरे शहीदों के सर हमें मिल जाएं और आज़ादारी और मजलिस के लिए हमें जगह मिल जाए। मिल गई सारी चीजें। अब जरा तसव्वुर की निगाह से देखिए, जब भाई का सर कटा था तो बीबी के सर से चादर उतर गई थी, न रो सकी थी। करबला में सैयद सज्जाद को संभालती रही बीबी, न रो सकी थी भाई को, इसलिए कि जब मकतल में आई थी और भाई के पास पहुंची तो भी ज्यादा देर न रुक सकी। अब पहली दफा करबला की 10वीं मुहर्रम से लेके 40 के मौके पे पहली दफा जब बीबी को और रिहाई के मौके पे जब पहली दफा बीबी को सर मिले, आप तसव्वुर कीजिए, अब बिछड़ी हुई बहन भाई से मिले, अब किस अंदाज में सर लिया होगा। आप सुनते रहते हैं तफसीली मसाइब, एक एक सर आता रहा, बीबियां आगे दामन बढ़ा के सर लेती रही। किसी तरफ जनाबे अब्बास का सर आया, उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, जनाबे कासिम का सर आया, जनाबे फरवा आगे बढ़ी, जनाबे अकबर का सर आया, जनाबे लैला आगे बढ़ी, जनाबे अली असगर का सर आया, जनाबे रुबाब ने लिया। अभी 2 सर आए और आगे कोई दामन न बढ़ा। रो के कहती है, ओ मोहम्मद, आपकी माँ मौजूद है बेटे, मुझे ज़हरा के बेटे का सर ले लेने दो, इसलिए कि मैं ज़हरा के लाल पे अब तक न रो सकी। अब सर लिया, मेरी बहनें बेटियां तशरीफ फरमा होगी, खुदा करे कोई बहन भाई के गम न देखे। अब जनाब ज़ैनब को भाई का सर मिला और पहली दफा कटा हुआ सर मिला। अब किस अंदाज से बीवी भाई को मिली होगी, दिल यही कहता है, होठों पे होठ रखे होंगे और पूछा होगा, मेरा गरीब भैया, मुझे बदला तुझ पे क्या गुजर गई भैया, ये बदला तेरी पेशानी पे जख्म कैसे है, मेरे भैया बदला ये होठ क्यों फटे हुए हैं। नरबर बीबी ने अपने दुख बदलाना शुरू किए। बीबी ने पहला जुमला ये कहा, हुसैन तेरा सर कट गया और भैया मेरा सर नंगा हो गया। बीबी कहती है, हुसैन तूने असगर को गोद में ले लिया, मगर तेरी 4 साल की अमानत को मैंने जिंदान में दफन कर दिया। हुसैन तेरी गर्दन की रगें कट गई भैया, लेकिन मेरी गर्दन भी रस्सियों ने जख्मी कर दी हुसैन। अब यह बीबी भाई को मिली और बीबी ने जब ये सामान देखा, एक दफा बीबी ने 2 दुर्र देखे, बीबी ने असगर का कुर्ता देखा। अब ये सामान लिया किसने, जनाबे रुबाब ने सामान लिया। और अभी जिंदान से जो आजाद हुई थी, जनाबे रुबाब जिंदान से उठी, आपने उस मकाम आजाद से उठी और जिंदान की तरफ चली। जनाबे सैयद सज्जाद ने पूछा, अम्मा कहाँ का इरादा है। बीबी रो के कहती है, जाती हूँ सकीना के पास और कहूंगी, बेटी उठो बाबा है, बेटी उठो असगर का कमीज आया है। अब ये सर लेके ज़ैनब का सफर जारी है और 2 जुमले कह दूं करबला के अजीजों, अभी यही बीबी सर लेके करबला पहुंची है। एक जुमला जनाबे भी सैयदा आती है, कभी हुसैन मुझे बतला उतरे कहाँ थे, हुसैन मुझे बतला ज़िबा कहाँ हुए थे, हुसैन मुझे बतला असगर कहाँ है, हुसैन बतला अकबर की कब्र कहाँ है। अब ये कहते कहते बीबी रो रही है और एक मकतल में मैं देख रहा था, बीबी रो रो के जब थकी, अब सैयद सज्जाद को बुलाया, कहा बेटा अभी एक पुरसा मुझे देना है। हाँ अम्मा कहा, बीबी ने कहा, सज्जाद मेरा हाथ थाम। अब हाथ थामा सैयद सज्जाद ने और कहा, सज्जाद मैं जाते हुए अब्बास के पास नहीं गई थी, अब जो बीबी आई
اس لیے کہ جب جا رہی تھی تو میرے سر پہ رضا نہیں تھی. عباس اٹھو، اب زینب بے رضا نہیں ہے، زینب کے سر پہ رضا ہے. لیکن سید سجاد نے رو کے کہا چچا کاش آپ شام اور کوفہ کے ان چوکوں میں ہوتے جہاں ہر روڈ پہ آپ کا بیٹا مرتا رہا. سجاد دیکھتا رہا تیری بہنوں کے نانوے ساتھ دشمنوں کا مجمع تھا، مگر چچا دین بچائے، اسلام بچائے، قرآن بچائے.